Hello student, myself Rajiv Verma. I am teaching about chapter solution unit second. This chapter is under physical chemistry. Physical chemistry is the branch of chemistry which deal with the study of physical properties of the molecules or substance like boiling point, melting point, freezing point, solubility, and other chapter also solid state, electrochemistry, chemical kinetics, and surface chemistry, also the chapter under physical chemistry. Solution is the homogeneous mixture of two or more pure components whose composition can be changed within certain limits. Homogeneous is the main uh, point for this chapter. Homogeneous means one phase system. वन फेज एक फेज वाला जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड होमो जैसे टू और मोर गैसेस कंबाइंड टुगेदर also form gaseous mixture is also the example of homogeneous when NaCl adding in water to form homogeneous mixture. ठीक है, तो homogeneous mixture का मतलब वन फेज सिस्टम. ठीक है, कोई भी दो या तीन कंपोनेंट या मैनी कंपोनेंट आपस में मिलाओ और होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए. ठीक है, सॉल्यूशन इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. यानी जो सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलके बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्यूट ऑलवेज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट वेयर एज सॉल्वेंट प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट और हायर अमाउंट. द फेज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द फेज ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, जो सॉल्यूशन की जो फेज है वो सॉल्वेंट की फेज पे डिपेंड करेगी. सॉल्वेंट अगर तुम्हारा सॉलिड है दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन. सॉल्वेंट तुम्हारा गैस है दैट इज कॉल्ड गैस सॉल्यूशन. सॉल्वेंट तुम्हारा लिक्विड है दैट इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज ऑफ 9 टाइप्स. 9 टाइप्स का होता है सॉल्यूशन. दैट इज फर्स्ट इज गैस सॉल्यूशन because solvent is gas. Second is liquid solution because solvent is liquid. And third is solid solution. First is gas in gas solution. Example of O2 and N2. Two or more gases are combined together to form homogeneous mixture. Liquid in gas, that example is water vapors. Solid in gas, example of camphor vapors in air. This also is sublimine substance. The process is called sublimation because in this process solid substance change to the gaseous substance without change in liquid. ठीक है, other examples iodine vapors, ammonium chloride. ठीक है, solid ice also the example of solid in gas solution. That 3 types of gas solution and 3 types of liquid solution. Okay. Gas in liquid solution when oxygen gas dissolved in water or CO2 gas dissolved in water then to form carbonic acid which is a unstable compound H2CO3. जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनमें CO2 का हाई प्रेशर दिया जाता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक जो है वो हमारे बॉडी के लिए सुटेबल नहीं होते हैं, हार्मफुल रहते हैं क्योंकि हाई प्रेशर ऑफ CO2 से जो है हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. दैट इज कैल्शियम डिजॉल्व होता है. ठीक है, बोन्स वीक होती हैं कोल्ड ड्रिंक से. ठीक है, इसलिए जितना कम से कम उतना ही यूज़ करना चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स को. ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड एग्जाम्पल ऑफ इथेनॉल इन वाटर. C2H5OH को जो वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो that is form a homogeneous mixture because ethanol C2H5OH having tendency to form hydrogen bonding with water molecules. ठीक है,
वाटर मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करके खुद बना देती है, इसलिए इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर. एंड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर. ठीक है. गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, एड्सॉर्प्शन. जो 5 यूनिट है आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री की, पूरा टॉपिक है एड्सॉर्प्शन का. दैट इज द सरफेस फिनोमेना. फॉर एग्जांपल अमोनिया ऑन कांटेक्ट with platinum surfaces, platinum metal, then it is break up into nitrogen and hydrogen gas. ठीक है. तो 2NH3 gives 3H2. तो platinum is the adsorbent whereas ammonia is the adsorbate. ठीक है. अमोनिया प्लैटिनम के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रही है, then it breaks up to form nitrogen and hydrogen. This is the example of adsorption. This is example of gas in solid solution. This is example of zero order reaction in chemical kinetics. तो वन एग्जाम्पल से तुम बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो. केमिस्ट्री में यही होता है, कोई चीज़ हम जब पढ़ते हैं, रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम उसे डेप्थ स्टडी करें. ठीक है. उस डेप्थ स्टडी करने से ये होता है कि हम लोगों को बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में पता लगता है. ठीक है. Next is liquids in solid solution, amalgams when mercury in copper. That is example of liquid in solid solution. Solid in solid. Solid in solid example, there are two types of solid in solid solution: substitutional and second is interstitial solid solution. Substitutional में क्या होता है? Substitutional में some of the solvent particles are replaced by or substituted by some solute particles. ये होता है इसमें कंडीशन रहती है the size of the solute particle is equal to the solvent particle then to form homogeneous mixture. ठीक है. तो इसमें जरूर जिंक इन कॉपर हो गया जैसे, तो कॉपर जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर यहाँ पे सॉल्वेंट है और जिंक उसमें जो है वो हमारा सॉल्यूट है. ठीक है. तो इनके जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहते हैं. ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है. डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में होती है प्रॉपर्टी कि बिकॉज दिस कंपाउंड दिस एलिमेंट हैव इन टेंडेंसी टू फॉर्म एलॉय, टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन. ठीक है. इंटरस्टिशियल में क्या होता है? इंटरस्टिशियल में दैट इज सॉल्वेंट पार्टिकल्स. Some of the solute particles or smaller size are present in the voids of the crystal lattice of solvent. इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, छोटे पार्टिकल्स वॉइड्स में आ जाते हैं. ठीक है. जैसे टंगस्टन कार्बाइड है, टंगस्टन जो है सॉल्वेंट है, कार्बन उसमें सॉल्यूट है. तो टंगस्टन कितनी सॉफ्ट मेटल है, लेकिन जैसे उसमें कार्बन ऐड कर रहे हैं तो वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाता है. अब्रेसिव की तरह यूज करते हैं, किसी चीज को काटने के लिए यूज करते हैं इसका, टंगस्टन कार्बाइड का. डी ब्लॉक आल्सो हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी डी ब्लॉक में होती है, सब्स्टिट्यूशन बनाने की डी ब्लॉक में होती है. क्यों इंटरस्टिशियल क्यों बनाते हैं? सब्स्टिट्यूशन इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके साइज अप्रोक्सीमेट सिमिलर होते हैं. इंटरस्टिशियल क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. जैसे आयरन की जो है दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, फेरस और फेरिक, Fe2+ Fe3+. तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे तो बीच में वॉइड्स रह जाते हैं, खाली स्पेसिंग रह जाता है. ठीक है. तो उस वॉइड्स में लाइटर एलिमेंट ऐड कर देते हैं तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाता है. तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन भी बनाते हैं, इंटरस्टिशियल भी बनाते हैं. सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है एलॉय है और इंटरस्टिशियल के एग्जांपल जो है वो टंगस्टन कार्बाइड है. ठीक है. तो बच्चों आप लोगों ने इसमें कुछ पढ़ा होगा, स्टडी करा होगा. जैसे एग्जाम के तौर पे कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ solid in solid solution. ठीक है. solid in solid solution के एग्जांपल दो.
तो इस टेबल में से जरूर एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का। तो तुम एलॉयज दे सकते हो, एलॉयज इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे जिंक इन कॉपर, जिंक को अगर कॉपर की क्रिस्टल लैटिस में लेते हैं तो ब्रास बन जाता है। ठीक है, और भी दे सकते हैं, मैं बताया था इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन टंगस्टन कार्बाइड भी दे सकते हैं इस एग्जांपल में। तो ऐसे कोई भी मतलब एग्जांपल जो है तुम लोगों का एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। कोई बच्चा बताओ लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन का क्या एग्जांपल है? गिव एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। Hg इन कॉपर, मरकरी को जब कॉपर में लेते हैं तो एमेलगम बन जाता है। तो दिस एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, मतलब कोई भी पूछ सकते हैं इस टेबल से। हर बच्चे इस पे फोकस करे कि एग्जांपल को अच्छे से ऐसे स्टडी करे। कोई भी चीज केमिस्ट्री में जब स्टडी करते हैं ना, तुम देखना जब मैं तुम लोगों को आगे पढ़ाऊंगा और चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, स्टडी कराऊंगा, तुम देखना कि कोई चीज हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कनेक्टेड रहती है। एक ही टॉपिक से मैं तुम लोगों को पूरी बुक में, दोनों बुक जो एनसीईआरटी की है फर्स्ट और सेकंड, वो कहीं भी बता सकता हूँ कि ये यहाँ पर है और ऐसे आता है बोर्ड में उसका क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को स्टडी करते हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है। हमने डीपीएस में देखा है, डीपीएसजी में त्रिवांश ने ऑल इंडिया टॉप करा था, 100% मार्क केमिस्ट्री में थे, वहां मैंने केमिस्ट्री पे पढ़ाया हुआ है। तो मैंने देखा है कि बच्चों को जब हम मार्क्स देते थे बोर्ड में तो 100% भी अलॉटेड किए हुए हैं। वो कैसे अलॉट किए हुए हैं, वो देखा गया है कि जब बच्चा मार्किंग करता है, लिखता है, उसे एक्सप्रेस करता है, तो जितने मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसने लिखा है कि नहीं लिखा है। कहीं पे उसने कोई ओवर राइटिंग नहीं करी हो, कहीं उसने जो है कोई गलत ना लिखा हो, ये सब चीजें जो है मार्क रिड्यूस करते हैं बच्चे का। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ ऐसे टिप्स भी बताते रहेंगे बोर्ड के, 12th बोर्ड के, जिससे बच्चे जो है 100% मार्क्स गेन करते हैं आगे कॉम्पिटिशन्स में, आईआईटी, मेडिकल्स में, किसी भी एग्जाम में केमिस्ट्री का, यहाँ तक कि एमएससी में, बीएससी में, कोई नेट का एग्जाम दे रहा है, सीएसआईआर का, वहाँ भी। तो हम लोग एक्चुअल में एवरी प्लेसेस पे जो है बच्चों को गाइड करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।